Uh, so good afternoon, everyone. I shall be talking today about some very common issue that comes in our pediatric practice, and that is acute laryngotracheobronchitis or CRU. Apart from that, I shall be talking something about the common causes of stridor and some special causes which are commonly seen in clinical practice, including CRU. So before I proceed to the class, let me tell you what actually is sometimes the presentation that you come across in clinical practice. I hope you are able to appreciate the sound that is coming from this child. Are you able to hear? Sometimes we receive such infants who have this kind of problem associated with acute respiratory distress. अब इसमें what are the components of respiratory distress? Can anybody tell me? So respiratory distress has two components. One is tachypnea, the other is chest retractions. ठीक है, तो इस बेबी के अंदर न सिर्फ आप टेकिपनिया देख रहे हैं, और रेस्पिरेटरी रेट, बिकॉज दिस बेबी इज से infant, say about this child may be around 6 months of age. So not only you are seeing suprasternal retractions, but also tachypnea and chest retractions. These are the chest retractions that I am talking about. So these are the chest retractions, the lower chest retractions and the subcostal retractions below the ribcage as well as the intercostal retractions. So intercostal as well as subcostal and plus the suprasternal retraction. In addition to that, you are hearing a very classical sound which is coming because of upper respiratory tract obstruction. This is known as stridor. Okay. So what are the various causes of stridor in children? So right, starting from congenital malformation, starting from birth itself, stridor can come across during day 1 or day 2 of life. Day 1 or day 2 of life, stridor can be there. Stridor can be there because of congenital malformations of the larynx. देखिए, stridor as a sound appears from the upper respiratory tract. The upper respiratory tract extends from the nostrils up to the subglottic space. The stridor is a abnormal, harsh, inspiratory sound. It can be expiratory also. जरूरी नहीं है कि हमेशा inspiratory हो, but most of the time it's of inspiratory sound occurring during the inspiration phase of the respiration, because it is something which is occurring from the extrathoracic part of the respiratory tract. ठीक है, intrathoracic कौन सा part होता है? Trachea and the bronchi and the lungs. These are all intrathoracic. The extrathoracic कौन सा part होता है? The epiglottis and the glottis. Okay, and the subglottic space. So that is the extrathoracic part. तो stridor कब आता है? Stridor is an abnormal sound whenever there is some kind of problem in the area extending from the epiglottis up to the trachea. Epiglottis से लेके trachea तक अगर कहीं भी कोई भी infection होता है, inflammation होता है, जिसकी वजह से obstruction हो उस part का, उसकी वजह से एक harsh crowing sound निकलती है, which is heard mostly in the inspiratory part of respiration, and that is known as stridor, as you are hearing in this case. ठीक है, so a stridor, ये तो अब आपको ये पता लगाना है कि stridor किस part से है.
अगर स्ट्राइडर अगर अपर मतलब ऑफ कोर्स इट्स कमिंग फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सो द चाइल्ड विल बी हैविंग मेनली सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस. बट इफ the lower part of the respiratory tract is also involved due to infection, say for example larynx के infection के साथ में trachea और bronchi का भी infection अगर हो जाए, then in that case as you can see in this patient the intercostal retractions and subcostal retractions will also be observed. तो कहने का मेरा मतलब ये है in joint infections, in joint का मतलब laryngotracheobronchitis वाले infections के अंदर the child will not only have a suprasternal retraction but will have intercostal as well as subcostal retractions as you are seeing in this patient. ठीक है. So that is to say, आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं, आप इमरजेंसी में बैठे हैं और आपके पास में रात को 2 बजे 3 बजे एक बेबी आता, एक बच्चा लेके आते हैं, यूजुअली 6 months to 3 years or say up to 5 years of age. ठीक है. And the child has a history of fever, coryza, cough. ठीक है. एंड किस तरह की कॉफ है? बार्किंग कॉफ है, एज इफ अ डॉग इज बार्किंग. ठीक है ना, इतनी भारी आवाज में बच्चा खांस रहा है और साथ ही साथ में अगर इस तरह की साउंड अगर सुनाई दे रही है विथ इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन विथ टैकेप्निया, स्टार्ट सस्पेक्टिंग दैट द चाइल्ड इज हैविंग अ वायरल इन्फेक्शन. And viral infection has led to acute laryngotracheobronchitis, which is known as CRU. इस पे आपका एक शॉर्ट नोट आता है एग्जाम के अंदर. ठीक है, आ सकता है, जरूरी नहीं आए. ठीक है. इन माई वट एवर क्लासेस आई विल बी टेकिंग, आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट द थ्योरी पेपर ऑल्सो. ठीक है. तो कुछ ना कुछ आपको हिंट्स मिलती रहेंगी, तो प्लीज पे अटेंशन to this class because you may have to write a short note. कभी कभार फुल क्वेश्चन भी आ जाता है कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर पर, और एलटीपी में भी साथ साथ एक क्वेश्चन साथ साथ बन जाता है. सो दिस सीम्स टू बी अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फ्रॉम द क्लिनिकल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द थियरी पेपर पॉइंट ऑफ द व्यू एज वेल. ठीक है. चलिए. सो लास्ट टाइम, just see this patient, always remember this kind of presentation and think about acute laryngotracheobronchitis. अब अगर suppose for example if you don't have any history of fever, cough, coryza, अगर किसी बच्चे के अंदर नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर तब ये होगा कि तब उस केस में क्या होगा, अगर सपोज पेशेंट को अगर इस तरह के सिम्टम्स नहीं हैं, देन इन दैट केस व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट यू विल हैव टू थिंक अबाउट अदर कंडीशंस वेयर देयर इज नो इन्फेक्शन. एक चीज का ध्यान रखें, जब कभी भी इन्फेक्शन होगा बच्चे को तो साथ में बच्चा फीवर लेके आता है. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि फीवर इज सिनोनिमस विथ इन्फेक्शन. देयर आर सर्टेन non-infective causes of fever as well. ठीक है. Now we come to the text. So CRU is a term used for respiratory distress with inspiratory stridor, cough and hoarseness resulting from obstruction in the region of larynx, trachea or bronchi. ठीक है ना. So this is made very clear. Most patients are between 3 months and 5 years of age with peak in the second year of life. ठीक है. They are most common in boys and in winter months. So that is very important. Very few patients may require hospitalization and very less, a fraction of them may require intubation because of severe CRU. ठीक है. They may require PICU care. So basically it's a infection of the larynx, trachea and the bronchus. So what are the common causes of CRU? So these are the common causes of CRU: parainfluenza viruses, influenza A and B, adenovirus, RSV stands for respiratory syncytial virus, measles virus, and very rarely you can come across bacteria as a cause of CRU, and commonly is
H influenza, ठीक है ना, that can result in a CRU syndrome. So these are the common causes. आपके ये न सिर्फ वाइवा वोसी का भी सवाल है, पर आपके ये MCQs में भी इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं आ सकते हैं आपके नीट पीजी पेपर में. This is something which explains the pathogenesis as well as the symptoms of CRU. So how does it all happen? It is preceded by a viral infection which invades the epithelium and invades the upper airways in the larynx and the trachea. उसकी वजह से क्या होता है? There is damage to the pseudo-stratified squamous epithelium. जो respiratory epithelial lining होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, और जब आपको पता है कि वो सिलिएटेड होती है साथ साथ. अब सीलिया की वजह से, सीलिया अगर डैमेज हो गई तो क्या होगा? साथ में म्यूकस का जो फ्लो होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है. So in that situation what actually happens is there are mucus plugs which come to obstruct the particular areas, affected areas of the respiratory tract, and that leads to a condition where there is stridor. कोई भी म्यूजिकल साउंड, कोई भी हार्श साउंड हो या अच्छी कोई म्यूजिक इस तरह की साउंड हो, वो कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन देयर इज पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ अदरवाइज hollow structure. So that gives rise to a musical sound. ठीक है, तो in this condition it is giving rise to a harsh sound which because of increased flow air turbulence moving across the airway, and that is resulting in a stridor. So stridor is basically a symptom of CRU. CRU is the disease, stridor is the symptom. और चूंकि glottis affected है, glottis क्या होता है? vocal cords. तो जब vocal cords affect हो जाएंगे तो क्या होगा? There will be hoarseness of voice, आवाज बैठ जाएगी. ठीक है ना, आपने सुना होगा बच्चे ज्यादा रो लेते हैं, जरूरत से ज्यादा रो लेते हैं तो क्या होता है? आवाज बैठ जाती है. या हम IPL के मैच जाकर के देखते हैं स्टेडियम के अंदर, जोर जोर से चिल्लाते हैं और अगले दिन क्या होता है? आवाज बैठ जाती है. सो दिस इज नोन एज होर्सनेस ऑफ वॉइस. ठीक है, सो इफ द चाइल्ड इज कमिंग टू यू विथ फीवर, कॉफ, कोराइजा फॉलोड बाय होर्सनेस ऑफ वॉइस, स्ट्राइडर एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एज यू सॉ इन दैट वीडियो क्लिप. ठीक है, अगर इस तरह से बच्चा आपके पास में आ रहा है तो डायग्नोसिस क्या बनेगा अपना? अक्यूट लैरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस. ठीक है, आई होप यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज सच पेशेंट्स whenever you get an opportunity while being posted in the emergency. चलिए, अब यहां पर और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस बच्चे को? एक बार्किंग कॉफ, जैसा मैंने कहा, खांसी का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है. नॉर्मली खांसी जैसे होती है वो अपने को पता है, बट अगर सपोज बहुत ही भारी खांसी हो, एज इफ सम डॉग इज बार्किंग, सो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड इज हैविंग the affection of the larynx at the same time. So child will come to you with this history along with respiratory distress. So as I already told you, respiratory distress के दो components होते हैं, tachypnea and chest retractions. ठीक है, so the child will present to you in this way. चलिए, so this is again the same thing. Duration of symptoms is usually 3 to 7 days and you can come across, यहाँ पे family history बड़ी important होती है. अगर आप ये पूछेंगे कि वे एक छत के नीचे जितने भी घर वाले जो भी फैमिली मेंबर्स हैं रह रहे हैं, क्या उनको बुखार, खांसी, जुकाम अगर है साथ में, तो अक्सर मदर ये कहेगी कि उसको खुद को ही है प्रॉब्लम. ठीक है, सो वायरल इन्फेक्शंस आर सच जहां पर द बेबी इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मदर एंड द मदर इज द अफेक्टेड पार्टी. In addition to that, other children in the family can also be affected, and that can also cause infection. So viral infections are very much contagious, and that leads, and there is a positive family history in such patients. Okay, so that gives you a diagnosis. See, remember, there is no test, there is no blood test that confirms the diagnosis of LTB. ध्यान रहे, हम ये कहते हैं कि फटाफट लैब टेस्ट करा लो, आपको डायग्नोसिस मिल जाएगा ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको प्योरली हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, बच्चे को देखना है, एंड यू विल बी एबल टू डायग्नोज दिस चाइल्ड एंड ट्रीट दिस चाइल्ड एट द सेम टाइम. ठीक है, अब एक सिवियरिटी स्कोर भी आ गया है जिसको हम वेस्टली क्रू स्कोर के नाम से जानते हैं. इसमें क्या है कि ये आपके सारे स्कोरिंग वो हैं, ठीक है ना, स्कोरिंग पैरामीटर्स हैं. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखिए,
अगर बच्चे की नॉर्मल है तो 0 स्कोर दें, डिसओरिएंटेड अगर बच्चा है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम में है तो 5। अब देखिए अब ये क्यों होता है बच्चा क्रू के अंदर, अभी तक तो मैंने कभी बताया नहीं आपको कि पेशेंट कैन गो इनटू ऑल्टर्ड सेंसोरियम। एक्चुअली सीवियर क्रू में जब एयरवे कुछ ज्यादा ही ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, इन दैट सिचुएशन द SpO2 फॉल्स बिलो 92%, and when the SpO2 falls below say a critical level of 90%, in that situation SpO2 means saturation percentage of oxygen, and that is measured by a pulse oximeter। आजकल पल्स ऑक्सीमीटर हर इमरजेंसी में आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है ना, पहले भी थे, अब कोविड के बाद तो और मैंडेटरी हो गया, ठीक है। इवन हर क्लिनिक्स पे यू हैव टू कीप अ पल्स ऑक्सीमीटर एट हैंड so that to record SpO2 and refer the patient if you are unable to manage that patient। So अगर 90% के नीचे जब भी अब SpO2 जाएगा तो क्या होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी और ऐसे में ब्रेन का जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू ऑल्टर्ड सेंसोरियम, ठीक है। स्पेशली द सेल्स विच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है सीवियर क्रू में, माइल्ड और मॉडरेट क्रू में, अब माइल्ड मॉडरेट किसको कहते हैं, सीवियर किसको कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है अगर स्कोर लेस देन 2 बनता है तो माइल्ड क्रू कहलाता है। आप अगर नीचे देखें इस स्कोरिंग सिस्टम के, ठीक है, तो ये अलग अलग फैसेट्स हैं स्कोरिंग जो आपको करनी है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है, साइनोसिस देखना है, स्ट्राइडर देखना है, एयर एंट्री देखनी है, एयर एंट्री ऑस्कल्टेट करके, स्टेथ से आप ऑस्कल्टेट करके देख सकते हैं। एयर एंट्री मींस ब्रेथ साउंड्स, इंटेंसिटी ऑफ द ब्रेथ साउंड्स, ठीक है। और रिट्रैक्शंस आप देखिए, तो देखेंगे आप कि जैसे जैसे इनकी सिवियरिटी बढ़ रही है सिम्टम्स की, इनका स्कोर भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है अगर स्कोर लेस देन इक्वल टू 2 है तो माइल्ड क्रू, अगर 3 to 7 के बीच में है तो मॉडरेट क्रू, अगर 8 to 11 के बीच में स्कोर अगर आता है आपका ये पूरे एड अप करके, देन इन दैट केस इट इज सीवियर क्रू। और अगर 12 से ऊपर स्कोर जा रहा है सो मींस द चाइल्ड इज इन इंपेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर आप एक क्लिनिक या नर्सिंग होम खोल के बैठे हैं और आपके पास में रात को इस तरह का पेशेंट आता है और अगर आपको ये स्कोरिंग पैटर्न करने पर स्कोर अगर आपका 11 के आसपास भी अगर आ रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट ऑक्सीजन एंड काउंसिल द पेशेंट्स कि पेशेंट इज इन अ वेरी critical condition and you should provide your ambulance to transfer the patient to the nearest tertiary level center where facility for HFNC, that is heated humidified high flow nasal cannula, heated humidified high flow nasal cannula की फैसिलिटी हो या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन की फैसिलिटी हो। नेवर कीप सच अ पेशेंट इन योर नर्सिंग होम और whatever facility you are having. This patient can die. Always remember. तो ऐसे पेशेंट को आपको तुरंत रेफर करना है। अगर टाइमली नहीं बोलोगे, नहीं समझाओगे, लालच के चलते उसको पेशेंट को एडमिट कर दोगे, यू कैन हैव एनीथिंग, ठीक है ना, कोई भी कंसिक्वेंस हो सकता है। सो प्लीज रिमेंबर व्हेन टू रेफर सच पेशेंट्स टू द हायर सेंटर, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में हैं, अगर आप CHC लेवल पर भी पोस्टेड हैं, इन दैट केस ऑल्सो CHC इज एट द लेवल ऑफ कितने पे होती है CHC? 1 लाख? या इस पे भी डिस्कशन चाहिए? क्या अबव 80,000? चलिए, वो हिली एरियाज में और प्लेन्स में डिफरेंट है, ठीक है। तो चलो 1 लाख की पॉपुलेशन पे अगर आप CHC लेवल पे भी बैठे हो और अगर इस तरह का पेशेंट आ गया जिसका स्कोर 11 या 12 चल रहा है या उससे भी ज्यादा चल रहा है, देन इन दैट केस प्लीज रेफर द पेशेंट टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। लोअर स्कोर्स कैन बी ट्रीटेड एट योर प्लेस, ठीक है। माइल्ड मॉडरेट क्रू है तो आप उसको बहुत आराम से अपने लेवल पे बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कैसे मैनेज करना है विल डिस्कस फर्दर। सो डायग्नोसिस इज फ्रॉम क्लिनिकल फीचर्स एंड एग्जामिनेशन, देयर इज नो ब्लड टेस्ट फॉर दिस, ठीक है। एक्सरे आप करा सकते हो ऐसे पेशेंट का। एक्सरे कराओगे तो क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा स्टीपल साइन,
ठीक है ना, स्टीपल साइन। ये स्टीपल साइन क्या होता है? ये स्टीपल साइन होता है जहां पे आप वो एरो देख रहे हो ना, वहां पे देखिए ये नॉर्मल ट्रांसलूसेंसी जो होती है वो ऐसे होती है। ट्रांसलूसेंसी क्यों होती है? इसका मतलब एयर होती है बीच में, तो ट्रांसलूसेंसी हो गई। जो ब्लैक कलर जो आप देख रहे हो लंबी लाइन, अब वो अगर उसकी नैरोइंग हो गई, नैरोइंग का मतलब देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ द ट्रेकिया, in the wall, and that is causing a narrowing of the airway lumen. ठीक है, why it is known as steeple sign? ये steeple जो वर्ड है, steeple का वर्ड का कहां से ओरिजिन है? यूरोप में जो चर्चेज होते हैं उनके जो डोम होता है उसके सबसे ऊपरी साइन, जो ऊपरी जो सबसे लंबा जो पार्ट होता है, that tapers like this narrowing of the airway lumen. That is why it is known as a steeple sign. ठीक है, तो subglottic narrowing is observed in the X-ray which you are seeing on the extreme left, yes. ठीक है, एक्सट्रीम आपके राइट साइड में उस तरफ आपको स्टीपल साइन दिख रहा है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल ट्रेकिया है, उससे आप कंपैरिजन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, एंड दैट यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट इन द एक्सरे फिल्म। एक्सरे आपको एपी व्यू करवाना है, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू करवाना है नेक का। ठीक है, ऑर्डर ये करना है आपको, और इसमें अगर आपको ये चीज दिखाई दे रही है अलॉन्ग विद द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, द डायग्नोसिस स्टैंड्स ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। ठीक है, सो दिस यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन? साइनोसिस अगर है पेशेंट को, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, प्रोग्रेसिव स्ट्राइडर है, बच्चा बिल्कुल टॉक्सिक अपीयरेंस है। ये टॉक्सिक अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक अपीयरेंस का मतलब ये नहीं कि उसने कोई पॉइजन खा लिया या कोई टॉक्सिन ले लिया है। टॉक्सिक अपीयरेंस का मतलब है सिक लुक। ठीक है ना, वेरी सिक लुक। एक सिक लुक जो होती है जब हम बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, खांसी जुकाम और न जाने क्या क्या हो रखा होता है, तो जो शक्ल बनी हुई होती है दैट इज अ सिक लुक। ठीक है ना, यू कैन वेरी वेल सी योरसेल्फ इन द मिरर इफ अनफॉर्चुनेटली यू फॉल सिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड a normal look is the look that you have when you see yourself in the mirror every day. So that is a normal look. So you should be able to differentiate between a normal look and a toxic look. ठीक है, सो बच्चा अगर आपको साइनोस नजर आ रहा है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, प्रोग्रेसिव स्ट्राइडर बढ़ती जा रही है, अब वो पेरेंट्स खुद ही बताएंगे साहब इसके ना आवाज आती है गले से, ऐसी आवाज आती है जो हम भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें हैं, आप अगर छोटे सेंटर पे बैठे हो तो रेफर कर दो, अगर आप बड़े सेंटर पे बैठे हो तो भैया फिर ट्रीट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हो इमरजेंसी में तो उसको बराबर ऑक्सीजन आपको चालू करनी पड़ेगी, आईवी फ्लूइड्स पे रखना पड़ेगा, पेशेंट को एमबीएम रखना है। ध्यान रहे, सीवियर क्रू वाले मरीज को खाने के लिए मुंह से ब्रेस्ट फीडिंग या कुछ भी और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग नहीं दिलवानी है। ठीक है ना, पेशेंट को इमीडिएटली ऑक्सीजन स्टार्ट कीजिए, और ऑक्सीजन स्टार्ट करें और नेबुलाइजेशन की तैयारियां चालू कीजिए। ध्यान रहे, आते ही मरीज को पहले हाथ लगाना है, एग्जामिन करना है, पेरेंट्स से 2 बातें करनी है और ट्रीटमेंट चालू करना है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम यही काम नहीं करते हैं और फिर बाद में पिट जाते हैं कि साहब बच्चे पे ध्यान नहीं दिया डॉक्टर साहब ने, फालतू बातें कर रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, आईपीएल का मैच चल रहा था वो देख रहे थे। ठीक है, सो प्लीज अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ये चीजें हमारे जो देखने पर, जो समझने पर जो आती हैं, दिस शुड बी डिटर्ड फ्रॉम। सो प्लीज पे अटेंशन टू एनी इमरजेंसी पेशेंट हु इज कमिंग टू यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन ड्यूरिंग द डे व्हेनेवर यू आर पोस्टेड इन अ इमरजेंसी or you are running your own nursing home. ठीक है, so these are the indications for hospitalization. अब मैनेजमेंट आप क्या करोगे? तो मैनेजमेंट, अगर सपोज पेशेंट माइल्ड मॉडरेट क्रू करके आ रहा है, देन इन दैट केस इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसको नेबुलाइजर से आप इसको स्टार्ट करो। सो नेबुलाइजेशन में सबसे पहले तो इसको डेक्सामेथासोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। क्यों? क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो वायरल इन्फेक्शन का कोई एंटीवायरल अभी तक तो मार्केट में नहीं है स्पेसिफिक फॉर पैरा इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा के लिए या आरएसवी के लिए
अब एज सच कोई देर इज नो एंटीवायरल. यस, यू हैव अ एंटीवायरल फॉर इन्फ्लुएंजा एंड दैट इज इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा है एंटीवायरल? बोलो बोलो बोलो, एनीबॉडी? फार्मा तो सब पढ़ के आए हो यार. हाँ, इन्फ्लुएंजा के लिए एंटीवायरल. ओसेल्टामिविर का तो नाम सुना ही होगा. कभी कभार शॉर्ट नोट भी आ जाता है उसके ऊपर, इसलिए बता रहा हूं. ठीक है, सो यू कैन हैव शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रग्स एज वेल इन योर एग्जाम theory paper. So please note it down. ठीक है, तो yes, you have an antiviral for influenza virus, no doubt about that, but that antiviral is specific for influenza. It is not meant for the other viruses. ठीक है, say for example RSV, say for example adenovirus. You don't have any anti-adenoviral or anti-RSV antiviral right now. आने वाले 10 साल में क्या क्या आने वाला है, मे बी यू कैन कम अक्रॉस, बट राइट नाउ यू डोंट हैव. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन आप तुरंत प्रोवाइड कीजिए. ठीक है, ऑक्सीजन बाय नॉन रीब्रीदिंग मास्क आपको मिल जाएंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल जाएंगे इमरजेंसी में, जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं एट द रेट ऑफ से 5 to 10 लीटर पर मिनट. हाई फ्लो ये मास्क होते हैं. इनमें तो इनफैक्ट रीब्रीदिंग मास्क में अप टू 15 लीटर पर मिनट तक भी आप दे सकते हो. ठीक है, नॉन रीब्रीदिंग मास्क से. सो हाई फ्लो ऑक्सीजन आप इनको प्रोवाइड कीजिए. ध्यान रहे, हर रेस्पिरेटरी केस के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का अफेक्टेड पेशेंट आए, ऑलवेज गिव ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन. ऑलवेज गिव ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन. क्यों? वो इसलिए, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम? यहाँ पे वायरस ने क्या किया, सीलिया को डैमेज कर दिया बिल्कुल, और सीलिया के डैमेज होने की वजह से जो म्यूकस है वो इंस्पिसिएट हो गई है, म्यूकस फिक्स हो गई है अपनी जगह पे. इसलिए ह्यूमिडिफाइड अगर आप ऑक्सीजन देंगे, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का मतलब आप ऑक्सीजन को वाटर के थ्रू पास करवा करके फिर आप देंगे. तो ऐसे में क्या होगा, जो म्यूकस होगी दैट विल बी लिक्विफाइड, दैट विल बिकम वेट एंड विल बी मोबिलाइज्ड, एंड दैट विल हेल्प इन रिलीविंग द स्ट्राइडर. समझ में आ रही है बात? So always give humidified oxygen as a form of treatment. Don't give dry oxygen. Dry oxygen का मतलब सिलेंडर से निकली और डायरेक्ट ट्यूबिंग के थ्रू पेशेंट के पास आई. That is dry oxygen. Avoid giving a dry oxygen. That will do more harm than good. ठीक है, the oxygen should always be passed through a bottle containing water. ठीक है ना, और you should have a humidifier attached. ह्यूमिडिफायर भी आजकल कंपनीज के अलग अलग मिलते हैं जो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होते हैं, और फिर उसके थ्रू फिर ऑक्सीजन जो होती है पेशेंट को दी जाती है. ठीक है, सो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. रिमेंबर, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ ड्रग. ठीक है ना, इट शुड नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ड्रग, अदर ड्रग्स. यू हैव टू गिव इट इन अ कैलिब्रेटेड मैनर, यू हैव टू गिव इट इन द प्रॉपर वे एज इट शुड बी गिवन. ठीक है, सो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन हैज टू बी गिवन, 1. नंबर 2, यू हैव टू स्टॉप इन एनीथिंग बाय माउथ. ठीक है, मुंह से बच्चा खाना नहीं खाएगा, नथिंग बाय माउथ. एनबीएम लिख दो उस पे ट्रीटमेंट चार्ट पे, एनबीएम. ठीक है, एनबीएम लिखा, फिर ऑक्सीजन इनहेलेशन लिखा एट द रेट ऑफ 10 to 15 लीटर पर मिनट थ्रू अ नॉन रीब्रीदिंग मास्क. तीसरा पॉइंट जो होगा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें लिखोगे इंजेक्शन आईवी फ्लूइड्स. इंजेक्शन आईवी फ्लूइड्स कौन सा दोगे? 5% जीएनएस विद किसॉल. ठीक है, 5% जीएनएस में क्या होता है, ग्लूकोज नॉर्मल सलाइन होता है. ठीक है, और साथ में किसॉल इज पोटेशियम. ठीक है, जीएनएस के अंदर पोटेशियम नहीं होता, आपको पोटेशियम तो देना पड़ेगा मेंटेनेंस में. आप सोडियम दे रहे हो, क्लोराइड दे रहे हो, पोटेशियम क्यों नहीं दे रहे हो भाई? तो इसलिए जीएनएस के साथ में पोटेशियम आपको ऐड करनी पड़ेगी. कितना दोगे? अगर सपोज बच्चा 20 किलो का है फॉर एग्जाम्पल, 20 किलो का तो ज्यादा हो जाएगा, 6 साल 7 साल का बच्चा हो जाएगा. तो अब हम यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल बच्चा आपका से 10 kg का है, तो 10 kg के लिए द डोज इज 1000 ml पर डे. ठीक है, फर्स्ट 10 kg इज 100 ml पर kg. ठीक है, मेंटेनेंस फ्लूइड.
क्योंकि बच्चे को आप कुछ नहीं दे रहे हो मुंह से, तो मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट इज 100 ml पर केजी आप फ्लूइड दोगे अप टू 10 केजी, यानी कि बच्चा अगर 5 किलो का है तो कितना होगा 500 ml, अगर बच्चा 10 किलो का है तो 1000 ml, पर अगर सपोज बच्चा 15 किलो का है तो 1500 नहीं होता, वो कितना होता है 1000 ml प्लस 50 ml पर केजी इंक्रीमेंट। तो यानी कि 50 इंटू 5, 15 माइनस 10 5 होता है ना, तो 50 इंटू 5 250, यानी कि 1000 प्लस 250 दैट इज 1250 ml। ठीक है, तो 20 किलो के लिए कितना होगा 1500 ml। ठीक है, दिस इज नोन एज हॉलीडे सिगार फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस फ्लूइड एज वेल एज कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीज ऑल्सो। आप लोगों से वाया वो सी पूछा जाता है कि साहब कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होता है। ये हाल है। सो प्लीज प्लीज लर्न दिस, प्लीज कीप इट डाउन इन योर मेमोरी, जो आपका सेट है दिमाग में, कि आपको ये फॉर्मूला हमें बताना है कि हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मेंटेनेंस फ्लूइड एंड कैलोरीज फॉर एनी गिवन चाइल्ड। ठीक है, दैट इज टू बी डन विथ रिस्पेक्ट टू एज, विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ द चाइल्ड। तो आपको करना यह है कि ऑक्सीजन देना है, आईवी फ्लूइड्स देना है, और एक सिंगल शॉट डेक्सामेथासोन लगाना है। डेक्सामेथासोन क्यों लगाना है? डेक्सामेथासोन इज अ highly potent steroid having a long term effect, as well as it is going to, what it's going to do, it is going to reduce the inflammation. It's an anti-inflammatory agent. Hence dexamethasone is the drug of choice. Single shot, you can repeat the shots keeping in view the clinical condition, ऐसी बात नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, but probably of course your diagnosis should be very much confirmed. तो dexamethasone is the drug of choice for mild and moderate croup. ठीक है, अगर पेशेंट को सीवियर क्रू करते हुए आ रहा है, तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी कंडीशन अगर सीवियर उसमें है, सिचुएशन में है बच्चा, तो आपको देखो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपको फिर भी देना है एज पर लॉ। आप ऐसे नहीं बच्चे को आपने देखा फटाफट भेज दिया। जितना हो सके बच्चे को आप ये कर सकते हो कि एक डेक्सामेथासोन का शॉट लगा सकते हो। कितने डोज से? 0.6 मिलीग्राम पर केजी से एक शॉट लगा दो डेक्सामेथासोन का। ठीक है, और उसको नेबुलाइज करवा दो जब तक कि आपकी एम्बुलेंस बाहर जो खड़ी है उसका ड्राइवर आ जाए और उसको मुड़ा करके शहर की तरफ लेके जाए उनको। ठीक है, तब तक डेक्सामेथासोन विल हेल्प एज वेल एज will help a lot, as well as epinephrine is the drug to be given through nebulization. epinephrine क्या करेगा? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, लोकल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। इतना इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है? वेजोडायलेटेशन होता है ना, तो एपिनेफ्रिन क्या करेगा? उसको वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, इट विल रिड्यूस द इडीमा जो वेजोडायलेटेशन के सेकेंडरीली हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? बच्चे की सूजन कम होगी। कहां की? ग्लॉटिस की। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर एयरवे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस। ठीक है, थोड़ी मैं आपको पीछे फिजिक्स में लेके जा रहा हूं, तो बट दिस इज द पॉइसियल्स फॉर्मूला फॉर दिस कंडीशन। अब ये कहां से आई बात? वो इसलिए आई कि बच्चों का एयरवे डायमीटर पहले ही कम होता है। अब अगर उसमें इंडीमा हो गया इन्फ्लामेशन की वजह से, तो बताओ कितनी बुरी हालत हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज, दैट इज टू से एपिनेफ्रिन दोगे तो एपिनेफ्रिन देने से वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और इडीमा कम हो जाएगा, और साथ ही साथ डेक्सामेथासोन से वेजोडायलेटेशन कम हो जाएगा। सो दैट विल हेल्प अ लॉट। आपका अगर अस्पताल टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल 25 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, कम से कम बच्चे को जो आपके दिए हुए ट्रीटमेंट से राहत मिलेगी, एंड ही और शी विल बी एबल टू सर्वाइव द जर्नी up to the hospital. So give this thing, know about this condition, and you will be able to help your patients a lot. Antibiotics have no role. क्यों? क्योंकि primarily the treatment of the etiology is virus. ठीक है, rarely you can come across a H influenza infection. ठीक है, जिसके लिए जो drug of choice is, what is the drug of choice for H influenza infection? What is the drug of choice for H influenza infection? Pharma? माइक्रो, फार्मा, पैथो, कितनी सारी चीजें
कंजॉइन होकर के क्लिनिकल साइंस में आती है। इंटीग्रेटेड है ये अपने आप में सब कुछ सिस्टम। बताओ भाई एच इन्फ्लुएंजा के लिए क्या दोगे ड्रग ऑफ चॉइस? थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन विल डू, सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है, या ओरली एक सेफेरॉक्सिन कैन ऑल्सो वर्क, ठीक है। सो दीज आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, आप साथ साथ इसको हॉट वेपोराइजर से, अगर हॉट वेपोराइजर आपके पास में है तो स्टीम भी दे सकते हो आप, लोकल स्टीम इनहेलेशन भी दे सकते हो, दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द सिम्टम्स। ये आप माइल्ड क्रू के अंदर अटेंडेंट्स को एडवाइस कर सकते हो, ठीक है। कार्बोल प्लस करके एक ट्रेड नेम के यूकेलिप्टस ऑयल के वो आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है। वो चीज, वही चीज विक्स में होती है जो आप विक्स यूज करते हो ना घर के अंदर, ठीक है, जस्ट टू ओपन योर नॉस्ट्रल्स ड्यूरिंग योर सीवियर कोल्ड। सो दैट यूकेलिप्टस ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, उनको भी पियर्स करके आप उसको मिस्ट के अंदर उसमें आप दे सकते हो। आपके मतलब सिंपली अगर आप बॉयल कर लो वाटर को तो स्टीम के थ्रू आप वो भी दिलवा सकते हो। दिस यू कैन डू एट ऑन द डोमिसिलरी बेसिस। माइल्ड अगर क्रू है बच्चे को, आपने डेक्सामेथासोन का शॉट लगा दिया, अब वो कहेंगे कि सर इसकी होर्सनेस है, आवाज इसकी बैठी हुई है, तो इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए बेस्ट ये है कि अटेंडेंट्स को कीप देम बिजी, ठीक है। आप अटेंडेंट्स को इन्वॉल्व करके रखोगे ना, वो बार बार आपको फोन करके जगाएंगे नहीं रात को, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि उनको ये कहो कि साहब ये कार्बोल प्लस के कैप्सूल्स लो, कैप्सूल उसको पियर्स करो और उसको निचोड़ के कैप्सूल को, उसका जो ग्रीन लिक्विड है किसमें डालो, हॉट फ्लूइड के अंदर डालो और उसको आंखों को कवर कर लो, क्योंकि उससे ना इरिटेशन ना हो आईज को, एंड आस्क द चाइल्ड टू ब्रीथ इन, ठीक है। अब एक 3 साल के बच्चे को आप क्या एडवाइस करोगे कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट? वो तो बच्चा रोएगा, अपने आप वो अंदर लेता जाएगा, ठीक है, वेपर्स अपने आप लेगा वो, ठीक है। सो दैट इज द वे टू मैनेज अ 3-year-old child, 3-year-old kid at home with mild or moderate croup in addition to your steroid that you have given, ठीक है। अच्छा, अब so this is what I have just told you about regarding management of mild or moderate croup. Dexamethasone is the drug of first choice, ठीक है। ये भी आपका नीट प्री पीजी का क्वेश्चन है। दोनों में आपको डेक्सामेथासोन भी लिखी मिलेगी और नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन भी लिखी मिलेगी, और दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका सही आंसर क्या है? माइल्ड और मॉडरेट क्रू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज डेक्सामेथासोन, और सीवियर क्रू के लिए भी आप वो दोगे पर साथ में एड्रेनलिन दोगे। तो एड्रेनलिन का जो इंडिकेशन है वो सीवियर क्रू में है, इट्स नॉट इन माइल्ड और मॉडरेट क्रू, ठीक है। So I think the concept is clear how you are going to manage this child in your hospital, ठीक है। कब आप उन्हें एडमिट करोगे, कब आप उनको रेफर करोगे, ये भी अब बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। So whenever the child will have severe stridor, cyanosis and increasing मतलब SpO2 is falling below 90%, refer the child to the nearest tertiary level center. सो व्हाट आर द डिस्चार्ज क्राइटेरिया? अब आपने बड़ी मशक्कत करी, आपने उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में संभाल के रखा, आप वहीं पोस्टेड थे एज अ मेडिकल ऑफिसर पीडियाट्रिक वार्ड में, एंड यू मैनेज द चाइल्ड वेल, ठीक है ना। आपने उसको नेबुलाइज भी किया एड्रेनलिन से, आपने स्टेरॉइड भी दिलवाए, आपने एक एंटीबायोटिक भी डाल दी सेफ्ट्रैक्सोन एट द डोज ऑफ से 50 to 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ठीक है ना। वो आपने वो भी दे दिया, ठीक है। बच्चे को आपने 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, पेशेंट इज नाउ हैविंग रिड्यूस्ड स्ट्राइडर, पेशेंट इज हैविंग नो स्ट्राइडर और रिड्यूस्ड स्ट्राइडर, हैविंग नॉर्मल पल्स ऑक्सीमेट्री। व्हाट इज नॉर्मल पल्स ऑक्सीमेट्री? हाउ मच इज नॉर्मल? 90, 98%, और कोई गेस? 95% और 93%। ओ चलो, ये तो तुमने स्टॉक मार्केट बना दिया यार। सो इट इज 95 to 98%, ठीक है ना। यू डोंट वांट SpO2 of 100%, रिमेंबर SpO2 of 100% थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी कई बार हो जाती है। रिमेंबर ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ ड्रग, इट हैज टू बी गिवन इन मॉडरेशन। सो SpO2 of 100% doesn't work,
It may create more harm than good, especially when you are dealing with neonates. क्या हो सकता है वहां पे? रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी. ठीक है, तो ऑक्सीजन के नुकसान भी होते हैं. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो किसी भी जीवन के क्षेत्र में हो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स. तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि नॉर्मल कलर, नॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, गुड एयर एक्सचेंज, डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू टॉलरेट फ्लूइड्स बाय माउथ, द चाइल्ड शुड बी एक्सेप्टिंग वेल. ठीक है, ब्रेस्ट फीड ले रहा है बच्चा या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ले रहा है, तो आप उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हो आराम से. What are the complications of CRU? Yes, there are certain complications. सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है. यानी कि आप पेशेंट को एडमिट कर रहे हो तो एक एंटीबायोटिक चालू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट समटाइम्स यू कैन हैव अ एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन ऑल्सो. So if you are admitting the child, if you aren't admitting the child, no need to give antibiotics. There is no role of antibiotics because this is basically a viral problem. ठीक है, so pulmonary edema, pneumothorax, pneumomediastinum, sometimes they can also occur, and one distant infection can also occur as a complication of CRU, and that is meningitis. ठीक है, then there are other conditions. Spasmodic CRU is because of underlying allergic disorder. यहाँ पे आपको फीवर नहीं मिलेगा, पर बच्चे में spasmodic CRU है. This is because of some kind of allergic reaction can be also there. So these are the various causes of stridor. ठीक है ना, starting with bacterial tracheitis, epiglottitis, foreign body aspiration. Remember, अगर आपके पास में शाम को आप मेडिकल ऑफिसर है इमरजेंसी में, थोड़ा सा सोच लीजिए, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, और शाम को बच्चा आराम से खेल रहा था और अचानक उसको सांस लेने में तकलीफ चालू हो गई और बच्चा आवाजें निकालने लगा. ठीक है, आप बैठे हो इमरजेंसी में, इमीडिएटली ये बच्चा आपके पास, यानी कि एक अच्छा खेलता कूदता बच्चा अचानक अगर सीरियस हो जाए, ऑलवेज थिंक अबाउट फॉरेन बॉडी, ऑलवेज थिंक अबाउट फॉरेन बॉडी. सडन ऑनसेट ऑफ CRU, सडन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑलवेज थिंक अबाउट फॉरेन बॉडी. सडन ऑनसेट कभी भी सिम्टम्स के हो ना, तो तीन चीजें हमेशा याद रखना. या तो वो फॉरेन बॉडी की वजह से, या कोई ट्रॉमा की वजह से, या फिर वो कोई वैस्कुलर प्रॉब्लम है. मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी अचानक ही होता है, और या फिर कोई वेनोम की वजह से. वेनोम कहां से आया? एनिमल बाइट, स्नेक बाइट से, वो स्कॉर्पियन बाइट, ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंजेक्शन, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो अचानक कभी भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, चार चीजें याद रखें: फॉरेन बॉडी, वास्कुलर कॉज, तीसरा टॉक्सिन, चौथा वेनोम. तो ये चार चीजें जो हैं, ऑलवेज कीप इन कंसिडरेशन. दिस विल हेल्प यू इन कमिंग डाउन टू अ डायग्नोसिस वेरी अर्ली. ठीक है, सो हेमेंजियोमा, अब लार्ज एयरवे लीजन्स, ये सारे पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस, इन सब पेशेंट के अंदर ये पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस, इन सब में ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा आपको देखने को मिलती है. बच्चा मुंह से सलाइवा निकाल रहा होता है. ठीक है, इन बच्चों के अंदर आपको स्ट्राइडर भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, अगर लार्ज टॉन्सिल्स हो विच आर जस्ट कमिंग इन द मिड लाइन एंड दे आर किसिंग ईच अदर, दीज आर नोन एज किसिंग टॉन्सिल्स, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेरिटॉन्सिलर एब्सेस में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, एंड दैट कैन गिव राइज टू अ स्ट्राइडर. ठीक है, सो ऑल दीज कंडीशंस हैव फीवर अलॉन्ग विथ, तो इसलिए हमेशा थ्रोट एग्जामिनेशन जरूर करें बच्चों का. ठीक है, डिप्थीरिया में आपको स्ट्राइडर मिल सकता है, laryngeal diphtheria can also cause stridor. So these are the various causes of stridor. आपके causes of stridor और इन सब पे भी क्वेश्चन बनता है. I hope you have gone through your ENT classes well. वहां पे भी stridor आपको पढ़ाया गया था. ठीक है, so then acute epiglottitis is another infection which affects the epiglottis only. Epiglottis is a leaf-like structure which guards the larynx. ठीक है, सो दिस एपिग्लोटाइटिस का भी इंफेक्शन ऐसे ही करके आता है, फीवर, कॉफ और स्ट्राइडर करके आते हैं ये बच्चे, एंड अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करके आते हैं बिकॉज ऑफ एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस कॉजेज ऑफ अक्यूट एपिग्लोटाइटिस. अगेन द सेम थिंग, स्ट्राइडर करेगा, बार्किंग कॉफ करेगा बच्चा. ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स, फीवर, बार्किंग कॉफ,
एंड स्ट्राइडर, अगर है तो एपिग्लोटाइटिस। अगर होर्सनेस ऑफ वॉइस साथ में है तो इसका मतलब ग्लॉटिस भी अफेक्ट हो गई है, ठीक है। सो एक्यूट एलटीबी, अगर साथ में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस हैं, ठीक है। अगर बच्चा एपिग्लोटाइटिस करके आएगा तो खाली सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस होंगे, ठीक है, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन नहीं होंगे, सबकॉस्टल रिट्रैक्शन नहीं होंगे। पर अगर ट्रेकाइटिस और ब्रोंकाइटिस साथ में है, जैसा मैंने पहले समझाया था क्रू के अंदर, तो वहां पे आपको लोअर चेस्ट के अंदर रिट्रैक्शंस मिलेंगे। सो इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फ्रॉम द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। सो द सेम थिंग थंब साइन, इस पे भी आपके नीट पीजी में सवाल आता है, थंब साइन कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। सो दैट इज सीन इन acute epiglottitis. So then bacterial tracheitis, these are rare infections caused due to staphylococcal infections, ठीक है। So brassy cough होती है and you have this, so appropriate, यहाँ पर आपको bacterial, आपको vancomycin is the drug of choice to manage methicillin resistant drug, staphylococcus aureus infection, ठीक है। So that is the main thing. So that was all. Thank you very much.